Good evening and warm welcome at the Thinking Palette platform. In the last video, I have talked about judicial review and I have promised you that in the coming video, I will talk about judicial activism. So here we will look into that what is judicial activism and what is the philosophy behind the judicial activism, along with discussion of pros and cons of judicial activism. Along with this, we will also look into that what is judicial restraint and what is judicial overreach. So after the discussion of this video, you will easily understand that what is the thin line difference between judicial activism and judicial overreach and the basic difference between judicial activism and judicial restraint. But before going into the understanding of the judicial activism, this diagram is the best diagram to represent that what is judicial activism. But for that, we will have to understand the basic of the constitution. That in India, we all know that there is separation of power. Separation of power means that the three organs of the government, that is legislature, executive, and judiciary, have their own arena of the functioning. However, they functions with the checks and balances. Now, in this diagram, you can easily understand that the judiciary is using its enormous power and cutting down the executive and the legislative branch. Therefore, you can say that judicial activism simply means that judiciary is entering into the area of executive and legislature. So now we will look into that what is judicial restraint and what is judicial activism. But before that, I am just giving you an understanding that whenever you will look across the country or across the world, then you will find that the school of jurisprudence has been divided into different schools. But for our understanding, you can easily understand that this activism, that is the judicial activism, is from the liberal school and this judicial restraint is from the conservative school. और ऐसा भी कहते हैं कि ये एक लीगल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है और ये एक सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है. ओके, देखो, एक लीगल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस में क्या होता है कि दे ऑलवेज रिस्पेक्ट स्टेयर डेसेसिस. नाउ तुम पूछोगे ये होता क्या है. इसका सिंपल मतलब है कि दे विल अपहोल्ड द प्रेसिडेंट दैट इज सेट अप बाय द जज. फॉर एग्जांपल, कोई केस 1970 का है, इसमें जजेज ने कुछ एक्स बात कही, तो 2020 में भी ये वाला जो स्कूल होगा वो इस एक्स वाले बात को ही मानेगा. इसीलिए कहा जाता है कि जो जुडिशियल रिस्ट्रेंट है वो लीगल स्कूल से आता है और ये केवल कॉन्स्टिट्यूशन के इंटेंट को समझता है. पहली बात. दूसरी बात कि ये पास्ट डिसीजन को यूज करता है अपने अर्ली डिसीजन के लिए और पॉलिसी मेकिंग में तो बिल्कुल भी भाग नहीं लेता. ओके, तो दिस आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर. अंडरस्टूड? नाउ you can understand from the fact that judicial activism is the different from the judicial restraint in the term कि जुडिशियल एक्टिविज्म में देखा जाता है कि हमारी सोसाइटी चेंज कैसे हो रही है. मान लो कि सोसाइटी की वैल्यू चेंज हो रही हैं, तो हमारे जुडिशियरी को भी अपने इंटरप्रिटेशन में चेंज लाना पड़ेगा. जैसे अभी मैं बोल दूं ट्रांसजेंडर के बारे में, तो कोई नहीं हंसेगा because we are living in 2020 and our societal values have changed. तो जुडिशियरी ने भी बोल दिया कि ट्रांसजेंडर थर्ड राइट है. इसी तरीके से एडल्ट्री पहले क्या था और आज क्या है, तो जुडिशियरी ने उसमें इंटरवेन किया और बोला कि लॉ को चेंज करना होगा. पहले वीमेन की एंट्री नहीं हो रही थी सबरीमाला में फॉर एग्जांपल, अब एंट्री हो रही है. क्यों हो रही है? तो ये एक्टिविज्म है. इसमें क्या करते हैं जुडिशरी और जजेस की वो सोशियोलॉजी के डायमेंशंस को और लॉ के डायमेंशंस को अलग अलग नहीं करते हैं. लॉ को सोशियोलॉजी से देखते हैं, सोशियोलॉजी को लॉ के हिसाब से देखते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है.
जुडिशियल एक्टिविज्म में वैल्यू चेंजिंग इन द सोसाइटी इज interpreted or is understood by the judges, and now they will interpret the constitution according to the changing values. Understood? तो अब हमें जानना पड़ेगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या। तो सबसे पहली बार जुडिशियल एक्टिविज्म एक आर्टिकल हुआ था, फॉर्च्यून मैगजीन में आर्टिकल छपा था और उसमें कहा गया था कि जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या। तो इसकी डिफिनीशन दी गई थी। उसमें यह कहा गया कि जहां पर जजेस जो अपने ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट से हैं उससे मूव कर जाते हैं और प्रोग्रेसिव और न्यू सोशल पॉलिसीज को समझते हैं और उसके बेसिस पे अपना जजमेंट देते हैं, उसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। जो हमने बात अभी जुडिशियल रिस्ट्रेंट और जुडिशियल एक्टिविज्म के डिफरेंस में समझी थी, वही आर्थर स्कल्सिंजर जूनियर ने पहली बार कहा था। अब हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का फिलॉसफी क्या है उसको समझने की। तो देखो, दो फिलॉसफी होती है जुडिशियल एक्टिविज्म की। पहली ये होती है कि जजेस को अपने पावर को यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए? ताकि जो इनजस्टिस हुआ है उसको करेक्ट करने के लिए इनको अपने पावर को यूज करना है, पहला चीज है। दूसरा कहा जाता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का जो फिलॉसफी है वो इस पे बेस है, कंस्ट्रक्टिविज्म इन एक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है उसके बारे में बात करना। तो इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, जैसे प्राइवेसी। ये आर्टिकल 21 में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था, लेकिन के पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 जो है वो प्राइवेसी को भी इंक्लूड करती है। इसीलिए ये फिलॉसफी है जुडिशियल एक्टिविज्म का। अंडरस्टूड? जब हमने समझ लिया कि इसकी फिलॉसफी क्या है, तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ट्रेंड्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया क्या है, कब ये ट्रेंड जुडिशियल एक्टिविज्म का आया और उसे हमें फायदा क्या हुआ, क्योंकि यही पॉइंट्स तुम्हें एग्जाम में लिखने होंगे। तो देखो, सबसे पहली बार मेनका गांधी केस में वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ हैज बीन यूज्ड बाय इंडियन जुडिशियरी। तो वो पहली बार कहा जाता है कि एक जुडिशियल एक्टिविज्म किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि इसका क्या फायदा है, या फिर जजेस केवल पावर ग्रैबिंग के लिए ऐसा करते हैं। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, सबसे पहले देखो कि हमें फायदा इन्वायरमेंट में क्या मिला है। तो देखो, इसमें हमें पता है कि एमसी मेहता केस सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल एक्टिविज्म के चलते ऐसा हुआ कि जो भी इंडस्ट्रीज कानपुर में पॉल्यूट कर रही थी गंगा को, उनके ऊपर रेगुलेशन लगा। फिर ये सुप्रीम कोर्ट के चलते ही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुभाष कुमार केस में बोला कि राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट जो है वो आर्टिकल 21 का पार्ट है। ठीक है, ये सुभाष कुमार केस में। ठीक है, एमसी मेहता केस सबसे बेस्ट केस है इन्वायरमेंट का इंडिया के रिलेटेड, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारा गैस ट्रेजेडी के भी केस इसमें ही सॉल्व किए थे। ठीक है, अब देखो सेकंड फायदा क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म का, वेलफेयर ऑफ द पुअर्स एंड मार्जिनलाइज्ड। इसके लिए मैं तुम्हें एक यूज कर रहा हूं, ओल्गा टेलिस केस। अब देखो, इस ओल्गा टेलिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ जो तुम्हारा 21 आर्टिकल में है, वो राइट टू लाइवलीहुड एंड राइट टू शेल्टर को इंक्लूड करता है। राइट टू लाइवलीहुड एंड राइट टू शेल्टर भी लोगों को मिलना चाहिए। जो माइग्रेंट्स मान लो आ रहे हैं बिहार यूपी से दिल्ली में, उनका राइट टू शेल्टर है। ठीक है, इसी तरीके से हुसनैरा खातून केस में, ये बिहार का केस है, हुसनैरा खातून केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज ए हाई टाइम टू डिस्कस द प्लाइट ऑफ प्रिजनर्स लिविंग इन द जेल्स। हमें सबको पता है कि प्रिजनर्स का क्या हाल हो रहा है, तो उनके वेलफेयर के लिए हुसनैरा खातून केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने उनका कंडीशन इंप्रूव करने के लिए बातें करी। ठीक है, इसी तरीके से जब लॉ मिसयूज होता है, मान लो कि लॉ मिसयूज हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजन मिसयूज हो रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ एंटी डिफेक्शन, ओके, इन द टर्म्स ऑफ गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट रूल, एवरीथिंग, तब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है और लॉ के मिसयूज को चेक करती है। ठीक है, इसी तरीके से
एक्सटेंशन ऑफ द राइट्स है। अब राइट्स के एक्सटेंशन भी तुम्हें समझने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे समझोगे राइट्स के एक्सटेंशन को? तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रांसजेंडर की। क्या हुआ ट्रांसजेंडर के साथ? हम पहली बार तो ऐसा हुआ कि ट्रांसजेंडर के राइट्स को इंक्लूड कर रहे हैं और उन्हें थर्ड जेंडर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नालसा जजमेंट में, तो हमने राइट को एक्सटेंड किया। समझ गए? लास्ट है टू डिपेंड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे डिपेंड हो रही है, इसमें हम बात कर सकते हैं श्रेया सिंघल केस में 66 ए ऑफ आईटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी तरीके से एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट रूल के बारे में बोला कि कब लगना चाहिए कब नहीं लगना चाहिए। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ड्रॉट जब आता है उस समय गवर्नमेंट के पॉलिसी को किस तरीके से ड्रॉट को चेक करना है, बिकॉज अल्टीमेटली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है क्या, we will have to take the concern of the citizen. Therefore, Supreme Court has set up National Disaster Mitigation Fund. गवर्नमेंट को बोला कि ये सेट करो नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। तो ये फायदा है जुडिशियल एक्टिविज्म का। जब भी आंसर लिखना होगा तुम्हें, यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ डिफरेंट केसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अंडरस्टूड? हमने तो जुडिशियल एक्टिविज्म के फायदे के बारे में बात कर लिया, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि क्या जरूरी है ये? यस, ये जरूरी है। क्यों? देखो, जब लॉ अपना काम करना बंद कर दे तब जज को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो क्रिकेट का ग्राउंड होता है, मान लो कि दोनों अंपायर फेल हो गए और गलत जजमेंट दे दिए, तब थर्ड अंपायर को आना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं है कि थर्ड अंपायर घर में बैठा है चुपचाप, ऐसा नहीं हो सकता, वरना क्या होगा, रूल ऑफ द क्रिकेट गेम फेल हो जाएंगे। उसी तरीके से यहां पे कि लेजिस्लेचर जब काम न कर रहा हो, एग्जीक्यूटिव जब सही पॉलिसी नहीं बना रहा हो, तो थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनविसाज्ड रोल है सुप्रीम कोर्ट का कि लोगों के ग्रीवांस को देखना है, आपको उनको लीगल सर्विस प्रोवाइड करानी है, उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं वायलेट होने चाहिए। ये सारे काम है सुप्रीम कोर्ट के। अंडरस्टूड? सेकंड इज मिसयूज ऑफ पावर। जब पावर मिसयूज करते हैं, लॉ का वायलेशन करते हैं लेजिस्लेचर वाले, तो फिर जुडिशियरी को इंटरवीन करना पड़ता है। प्रॉमिस, प्रॉमिस किसका प्रॉमिस है? फाउंडिंग फादर्स का प्रॉमिस था कुछ हमारे लिए, कुछ सिटीजन्स के लिए। तो उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अगर लेजिस्लेचर काम नहीं कर रहा है तो जुडिशियरी को करना पड़ेगा। Next is time taking. It happens sometimes that the lack of the decision making capability of the legislature, इसके चलते बहुत सारे पॉलिसी डिले हो जाते हैं। तो उस डिले को चेक करने के लिए फिर से जुडिशियल एक्टिविज्म का ही जरूरत है। समझ गए? अब हम देखेंगे कि चलो ठीक है, ये फायदा है जुडिशियल एक्टिविज्म का, लेकिन इश्यूज क्या हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के चलते। तो हम देखेंगे पहला इश्यू, फर्स्ट इश्यू विथ रिस्पेक्ट टू जुडिशियल एक्टिविज्म यही है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट करता है। ठीक है? दूसरी बात है कि जब मान लो कि बार बार जुडिशियरी इंटरवीन करेगा तो तुम्हें क्या लगेगा कि अरे यार, देश में तो केवल जुडिशियरी ही काम कर रहा है, तो अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो हैं जैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उन पे से आपका भरोसा उठ जाएगा और इन इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी एंड फेथ सब इरोड हो जाएंगी। ठीक है? फिर देखो तीसरा इशू क्या है इसके साथ कि देखो, जुडिशियल डिसीजन जब एक बार ले लिया जाता है तो फिर यही वाला जुडिशियल डिसीजन बार बार दूसरे रूलिंग्स में यूज होते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सा है? तुम्हारा जुडिशियल एक्टिविज्म का। समझ गए? अब देखो एक चीज मैं यहां बता देता हूं तुम्हें, जुडिशियल ओवररीच। देखो, जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म में कोई बहुत ही बड़ा डिफरेंस नहीं है। बस केवल तुम्हें यह समझना होगा कि जुडिशियल ओवररीच में क्या होता है कि when judges crosses the limit of judicial activism and it becomes judicial adventurism। जुडिशियल एडवेंचरिज्म मतलब देखो, इन्हें अब ये लगने लगा कि जो मैं बोलूंगा वैसे मानेगी कैसे नहीं दुनिया,
तो इनको जो मन में आता है वो बोलते हैं, तो वो कहा जाता है जुडिशियल ओवररीच। देखो, क्योंकि अभी मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल दूंगा तब तुम समझ पाओगे चीजों को। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक एग्जांपल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि ब्यूरोक्रेट्स जो भी हैं इंडिया में, वो सारे अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। अब मुझे ये बताओ, इससे क्या फायदा होने वाला है? ना ये वेलफेयर हो रहा है मार्जिनलाइज सेक्शन का, ना इससे इन्वायरमेंट सुधर रहा है, ना रूल ऑफ लॉ सुधर रहा है, ठीक है, ना डेमोक्रेसी डीपनिंग हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। इट इज अ जुडिशियल एडवेंचरिज्म। उनको रात में दिमाग में आया कि कल सुबह में जाके ये बोल दूंगा इलाहाबाद कोर्ट में बैठकर, तो उन्होंने ऐसा बोल दिया। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जब भी नेशनल एंथम सिनेमा हॉल में जब भी बजेगा तो आपको उठना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक जुडिशियल एडवेंचरिज्म है, बिकॉज यू कैन नॉट इन्फ्यूज पैट्रोटिज्म, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट ए गारंटी दैट द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन द सिनेमा हॉल इज मोर पैट्रियोटिक देन द अदर्स। ठीक है, तो ये जुडिशियल ओवर रीच है। समझ गए? अब देखो, कोई भी आदमी तुमसे पूछे कि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवर रीच में अंतर क्या है, तो तुम्हें यही बोलना है, जुडिशियल ओवररीच इज इक्वल टू जुडिशियल एक्टिविज्म प्लस जुडिशियल एडवेंचरिज्म, दैट्स ऑल। अंडरस्टूड? सो मुझे लगता है कि यू हैव अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एक्टिविज्म, restraint and overreach. In the next video I will come with the new topic of the polity, which is little complex to understand, and I hope you are enjoying it. What is your view with respect to this video? Kindly give your suggestions in the comment box and I will try to incorporate those suggestions in my next video. Thanks a lot.